Respected Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, our colleague ARD, Dr. Neeraj, रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के हमारे स्टाफ मेंबर्स और हमारे लर्नर्स, वेलकम टू द इंडक्शन मीटिंग ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स फॉर जुलाई 2024 सेशन. You are welcome in the largest educational family of the world. As you all know that Indira Gandhi National Open University is one of the largest open university, where we have enrolled about 40 lakh students and about 40 lakh other students who have already achieved their marks and degree, who have already. Ashok Sharma ji. Yes, please. Our colleague. Hello. ARD, Dr. Neeraj. Sorry. These students who have already obtained their degrees, they became the family of the largest educational family, and we welcome you all in our family. With this, I would like to invite our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, to please welcome our learners. Thank you, Dr. Faisal. A very warm welcome and namaste to all our dear 4,992 learners of 94 certificate level programs and semester based programs of July 2024 session under RC Delhi 3. I welcome you all, including you and all our other respected study center coordinators, assistant coordinators, and other functionaries at our study centers, respected academic counselors and teachers at our IGNOU study centers, all my dear RC Delhi 3 colleagues, and family members and friends of our learners, ladies and gentlemen. Just like my colleague Dr. M.R. Faisal, I also welcome you all to world's largest university, Indira Gandhi National Open University, and I welcome you all to this today's induction meeting. This is a very important meeting for all of us, because in this meeting we not only welcome our new family members who have joined us in various programs of IGNOU, but in addition to welcoming them, we introduce them to our system and we let them know and understand how does IGNOU work. You all must be knowing that our IGNOU headquarters is at Maidan Garhi, New Delhi. Indira Gandhi National Open University's headquarters is there at Maidan Garhi near Saket in Delhi. And you all are our esteemed learners, our dear learners of one of the 57 regional centers of IGNOU across India. And the name of our regional center is Regional Center Delhi 3. We are situated at Narayana Vihar near Delhi Kent. And from this regional center Delhi 3, today we are going to discuss a lot of important points and issues, and we will be sharing very crucial information with you all. Although you must have already received my one detailed email as soon as your admission was confirmed, with the help of my regional center colleagues and my staff,
I got your data, your admission data, and then I sent you all a very detailed email in which we shared with you your admission details, study material details, assignments, examinations, and lots so many other relevant information about our university resources, audio resources, video resources, and lot many other important information was shared by us with you all. But this is a great occasion for all of us to speak and to talk to you and to resolve your queries if there are any. And this program we are conducting through Facebook Live, but my colleague, he will be reading out your Facebook comments also, and important questions we will take at the end of our presentations. And once again, I welcome you all, and I request my colleague Dr. Amar Faisal to please initiate the proceedings of our today's induction meeting. Thank you so much. God bless you all. Thank you. Thank you, sir, for addressing the learners of our university regional center. Now, I would like to proceed with the presentation. I would like to present some updates and information about how the students can go ahead. Let me start the presentation. Is the screen visible, sir? Yes, that's how it is visible. Thank you, sir. Now, as you have enrolled yourself in a very important program of your choice in IGNOU, your journey starts with your admission, with your fresh admission. You are admitted in July 2024 session, and after that, the communication you might have received through email about different aspects of your program, your university, and the first important step is the conduct of the induction meeting, which is going on. In this induction meeting, we will let you know different aspects of the university and about your program, about the counseling sessions, assignments, examination, about your result, and how can you receive your mark sheet and degree. First of all, I would like to suggest you that before going ahead, you visit your official IGNOU website, that is ignou.ac.in. Go to student support link of the website and then click on student zone. Then a new page will open, and then you click on the admission link and fill your enrollment number and program code with CAPTCHA. After filling the details, you will get your registration detail. This is very important because herewith you will find all your relevant details, your name, your father's name, roll number, program, medium, and your some of the digits of your phone number, your study center, your regional center, and most importantly, your registered courses, the course codes which you are registered in. So while completing your journey, these information will be very helpful, very useful. तो
इनको आपको ध्यान में रखना है कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करके रखें कि आप कौन कौन से कोर्स हैं, आपके किस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं, आपका नाम चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसी लेवल पे अपना जो एड्रेस है वो चेक कर लें वो अपडेटेड है या नहीं है। आपका जो स्टडी सेंटर है वो हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से आप अपना स्टडी सेंटर अगर आप कहीं मूव करते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अपना रीजनल सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप कहीं मूव करते हैं। तो इग्नू जो कि डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप अपनी पढ़ाई को हर लेवल पे जारी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही जगह पे लोकेटेड हों, कहीं भी आप जाएंगे आपके साथ ये यूनिवर्सिटी जाएगी, क्योंकि हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं वो पूरे इंडिया में हैं और हमारे जो स्टडी सेंटर्स हैं वो भी पूरे इंडिया में हैं। तो हर जगह से आप इग्नू से जुड़ सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा काम यह है कि आप अपना इग्नू का आई कार्ड जो है वो ज़रूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको उसी पोर्टल पे जाना होगा जहां से आपने एडमिशन लिया है, और जो आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है उसको करने के बाद आप लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद इग्नू आई कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वहां पे जा करके अपना इग्नू का आई कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको ज़रूरत होगी स्टडी मटेरियल की भी, क्योंकि अब आपको असाइनमेंट भी जमा करना है और एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपना असाइनमेंट का डिस्पैच स्टेटस स्टडी मटेरियल का डिस्पैच स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप इग्नू की वेबसाइट से उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस में मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न के लिंक के अंदर स्टडी मटेरियल स्टेटस है, वहाँ जा करके आप अपने सेशन के हिसाब से आप अपनी डिटेल फिल करके अपना रोल नंबर डाल करके अपना स्टेटस देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से आपका जो स्टेटस है वो रिफ्लेक्ट करेगा। एक सैंपल के तौर पे हमने आपको दिखाया है। और अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई आपको ग्रीवेंसेस हैं, कोई स्टडी मटेरियल आपको मिला है, कोई नहीं मिला, तो उसके लिए आप registrarmpdd@ignu.ac.in पर ईमेल करें, और ईमेल करने के साथ साथ आप जो है स्टेटस भी चेक करते रहें, ताकि अगर आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच हुआ है तो वो आपको आसानी के साथ मिल सके। गेट योर स्टडी मटेरियल बाय ई कंटेंट ऐप्स, यानी इग्नू का जो ई कंटेंट ऐप है, इग्नू ई कंटेंट के नाम से एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में, एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो डिजिटल फॉर्म में आपको, आपके प्रोग्राम का जो मटेरियल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यू कैन स्टडी योर स्टडी मटेरियल वाइल ऑन द गो। आप कहीं भी हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में हैं, कहीं भी हैं, आप सफ़र कर रहे हैं या घर में हैं, कहीं भी हैं, आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड करके रखें। ई ज्ञान कोश पोर्टल इग्नू का, आप इग्नू की होम वेबसाइट पे जब जाएंगे तो ई ज्ञान कोश के नाम से एक लिंक है, जो एरो पे जो दिखाया गया आप देखिएगा, और वहाँ से भी आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के दो तरीके हुए, एक तो आप ऐप से मोबाइल पे अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा आप इग्नू की जो वेबसाइट है उसके अंदर ई ज्ञान कोश का एक लिंक दिया है, ई ज्ञान कोश वेबसाइट है egyankosh.ac.in, वहाँ से भी आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने सॉफ्ट कॉपी को ऑप्ट किया है और 15% का डिस्काउंट लिया है, उनको प्रिंटेड वर्जन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ही सॉफ्ट कॉपी को चूज़ किया है और उसके लिए 15% का डिस्काउंट लिया है। लेकिन जिन लोगों ने सॉफ्ट कॉपी को चूज़ नहीं किया है और उन्होंने प्रिंटेड वर्जन को ऑप्ट किया है, उनके पास प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उनके घर पे बाय स्पीड पोस्ट पहुंचेगा। इसीलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने पोस्ट ऑफिस से, अपने पोस्टमैन से कांटेक्ट में रहें
ताकि आपका जो स्टडी मटेरियल है आसानी के साथ आपको मिल सके। और आप जो है अगर डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनल सेंटर की अपनी एक वेबसाइट है। इग्नू रीजनल सेंटर पे जब आप गूगल पे सर्च करेंगे RC Delhi 3, जैसे यहाँ पे सर्च करके दिखाया गया है इस स्लाइड में, तो आपको सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगी वो इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की rcdelhi3.ignu.ac.in मिलेगी। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट अपडेट्स मिलेंगे। अनाउंसमेंट सेक्शन है उसके अंदर। ये होम पेज है और होम पेज के अंदर जो अनाउंसमेंट सेक्शन, जैसा कि मैंने बताया आपको, अनाउंसमेंट सेक्शन में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, आपकी कोई असाइनमेंट की डेट बढ़ गई या आपकी काउंसलिंग कब होगी उसका शेड्यूल, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने के लिए सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स के अंदर जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो आप जो है उसके अंदर गाइडलाइंस भी आपको मिलेंगी कि असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करना है, और जो आपके स्टडी सेंटर के जो गूगल फॉर्म लिंक्स हैं या ईमेल है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये इंश्योर कीजिए कि आपने असाइनमेंट करेक्ट जो लिंक है उस पर आप सबमिट करेंगे और करेक्ट जो कोर्स कोड है उसको मेंशन करते हुए सबमिट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू डाउनलोड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। इग्नू की वेबसाइट में जब डाउनलोड्स के अंदर फर्स्ट होम पेज पे जब जाएंगे आप, तो डाउनलोड्स सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा। उसके अंदर जब आप जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर, तो आपको असाइनमेंट्स का एक लिंक मिलेगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के, मास्टर डिग्री से लेकर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सभी तरह के प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे सर्च करके जो आपके कोर्स कोड्स हैं उनको फाइंड आउट कीजिए और फिर अपना असाइनमेंट, लेटेस्ट जो होंगे असाइनमेंट, वो डाउनलोड कीजिए। प्लीज इंश्योर दैट यू आर डाउनलोडिंग दी लेटेस्ट अवेलेबल असाइनमेंट्स। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि असाइनमेंट जो आप लिखेंगे उसके साथ फर्स्ट पेज क्या रहेगा, तो कवर पेज क्या रहेगा। तो कवर पेज का एक सैंपल हमने जो RC वेबसाइट में जो असाइनमेंट सबमिशन का जो अभी बताया था लिंक, उसके अंदर ये कवर पेज दिया हुआ है। तो उसमें जो आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी होगी। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी नीचे दिए हुए हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ें। असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो बढ़ गई है, 30 अक्टूबर हो गई है, ये ध्यान दें आप। इसलिए हमारे बहुत सारे जो लर्नर्स हैं जिनको असाइनमेंट सबमिट करना है वो परेशान है कि असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है। उनको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि असाइनमेंट की लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी है और वो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। उससे पहले आप अपने असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक्स जो दिए हुए हैं स्टडी सेंटर के, या तो वहाँ आप जमा कीजिए, और अगर स्टडी सेंटर ने ये कहा है कि आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है, हैंड रिटन असाइनमेंट्स की हार्ड कॉपी आपको स्टडी सेंटर में जमा करनी है, तो आपको वहाँ पे जाकर के स्टडी सेंटर में जमा करना होगा। लेकिन कोई एक ही मोड से आपको जमा करना होगा, या तो ऑनलाइन या हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर पे। अब आप ये जान लें कि why is it important to make assignment? Assignment is a compulsory component for successful completion of any program. Evaluation pattern जो इग्नू का है उसमें थ्योरी एग्जाम होता है, उसका वेटेज जो है 70% है, और जो असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 30% है। तो इसीलिए असाइनमेंट को हम ये कहते हैं कि कंपलसरी है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट, चाहे वो अगर आप फर्स्ट डिवीज़न हासिल करते हैं और उससे टॉप करते हैं अगर आप अपने प्रोग्राम में, तो उसमें असाइनमेंट का भी एक बड़ा रोल होता है। तो इसलिए अपने असाइनमेंट को भी आप अच्छी तरह से हैंड रिटन में तैयार करें।
असाइनमेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, बहुत सारे हमारे लर्नर्स ये सवाल करते हैं कि पेपर कैसा होना चाहिए। तो यूजुअली आप किसी भी पेपर में आप लिख सकते हैं, लेकिन यू कैन यूज एनीथिंग रजिस्टर्ड ऑन A4 साइज पे वाइट शीट, but you keep in mind that the answer should be written by leaving a margin of 1 to 2 inches on both the right and left sides of the page। और जैसा कि मैंने बताया कि कवर पेज में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब असाइनमेंट आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं अपने लर्निंग मटेरियल्स की हेल्प से। आप यानी सबसे ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी असाइनमेंट तैयार करने में आपके स्टडी मटेरियल से, वही आपका बेस होगा। और जाहिर है कि जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, जो आपकी काउंसलिंग क्लासेस लेते हैं, उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। अब जो डेट्स हैं, यूजुअली अलग अलग सेशन की अलग अलग डेट्स हैं असाइनमेंट सबमिशन की। तो जैसा कि आपका जो सेशन है वो जुलाई सेशन है, तो जो मंथ ऑफ सबमिशन होता है स्टार्ट होता है जुलाई सितंबर में शुरू हो करके यूजुअली ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम में कुछ नोटिफिकेशंस भी निकालती है लास्ट डेट की, तो उसको भी आप जहन में रखिए और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे आप अपडेट होते रहिएगा। हाउ टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड में, जैसा कि आप हैं सेमेस्टर प्रोग्राम में या सेमेस्टर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में है, 6 महीने के ये प्रोग्राम होते हैं जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं वो 6 महीने पे जो कोर्सेज होते हैं उनमें आपको असाइनमेंट भी जमा करना होता है और एग्ज़ाम भी देना होता है। तो इसीलिए आपकी ये मीटिंग हो रही है ताकि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आप असाइनमेंट पहले सबमिट कर दीजिए और एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर दीजिए आप, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो पहले असाइनमेंट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी वेबसाइट पे, इग्नू की वेबसाइट पे दी हुई है। लेकिन आप ये एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, वो इग्नू की वेबसाइट पे सारी गाइडलाइन उसकी अवेलेबल है। इस तरह का कुछ आपको सैंपल के तौर पे आप देख सकते हैं। अब इसका जो हॉल टिकट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, वो उसको आप ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते ही आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। एग्जामिनेशन जो शेड्यूल होता है उससे 10 दिन पहले, यानी स्टार्टिंग डेट से 10 दिन पहले हॉल टिकट जो है आपका यूनिवर्सिटी अपलोड कर देती है इग्नू की वेबसाइट पे। अब वहाँ से आपको जाकर के खुद डाउनलोड करना होता है। यूनिवर्सिटी आपको हॉल टिकट आपके घर पे नहीं भेजती है, आपको खुद ही जाकर के इग्नू वेबसाइट पे डाउनलोड करना होता है। तो ये ध्यान रहे कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी शुरू कर दीजिए एग्जामिनेशन की, और जब एक हफ्ता रह जाए एग्जामिनेशन शुरू होने में तो अपना हॉल टिकट है जिसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर और जो कोर्स आपने भरे हैं, जिसकी फीस दी है आपने ऑनलाइन, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं और सारी गाइडलाइंस भी उसी हॉल टिकट में दी होती हैं। तो सारी गाइडलाइंस को भी आप ज़रूर पढ़ें। जो यूनिवर्सिटी का एवेल्यूशन सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 70% वो थ्योरी का होता है वेटेज और 30% असाइनमेंट का होता है। लेकिन मल्टी टियर सिस्टम ऑफ एवेल्यूशन है यूनिवर्सिटी का, जिसमें जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है उसमें सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी आप करें ताकि आपकी तैयारी हो जाए एग्जामिनेशन की। और कॉन्टिन्यूस एवेल्यूशन जो होता है मेनली वो असाइनमेंट्स के थ्रू होता है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल जिसको कहते हैं, और उसके अलावा सेमिनार है या वर्कशॉप है या एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम्स में ECP भी होता है जिसको एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स कहते हैं, तो वो भी इसका कॉन्टिन्यूस एवेल्यूशन का पार्ट होता है। प्रोजेक्ट वर्क भी जो है उसका एवेल्यूशन सिस्टम में होता है, कुछ प्रोग्राम्स में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो आपको अपने प्रोग्राम्स में ये देखना होगा कि आपका उसमें कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है। मोस्टली सर्टिफिकेट प्रोग्राम में प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स में होते हैं। तो इसलिए आप जो है इसके लिए निश्चिंत रहें। आप फिर भी अपनी डिटेल्स जो हैं कोर्स वगैरह आप ज़रूर चेक कर लें।
जहाँ तक यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी रिकग्निशन की बात है, तो मुझे लगता है आपने एडमिशन लेने से पहले ही ये चेक कर लिया होगा कि इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं या नहीं हैं, और अगर फर्दर डिटेल्स आपको इसके बारे में जाननी है तो इसके बारे में आप इग्नू की वेबसाइट पे जो लिंक है ये, वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे प्रोग्राम्स वो जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वहाँ से रिकग्नाइज्ड हैं। बिना रिकग्निशन के कोई भी प्रोग्राम इग्नू रन नहीं करती है। तो इस सिलसिले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपने प्रोग्राम को पीसफुली आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच। नाउ आई स्टॉप माय प्रेजेंटेशन। Now I would like to request Dr. Neeraj to please present his PPT. Dr. Neeraj, please. Is it visible, sir? Yes, yes, visible. First of all, I welcome and congratulate all new learners for joining our IGNU family. Today, I will guide you on how to download counseling schedule. Now I am sharing my screen with you. As you can see, this is the RC3 website homepage. Here is an icon for the counseling schedule. When you click on it, you will find the counseling schedule planned by all nodal RCs and all LSCs. When you click on it, new page will open, as you can see. Here is the detail of all the RCs and the programs list and the counseling schedule planned by all nodal RCs and all LSCs. When you click on it, you will get the counseling schedule for your program. And you can also see the program planned by the LSCs with LSC code and program. I also inform all learners that practical counseling sessions are compulsory for all learners to attend. I request all learners to attend, please attend the theory classes also, so that you can clear your doubts with your academic counselor and also interact with your peer group and your classmates. Before starting this slide, I just share, as you know, IGNU offer program in both ODL and online modes. So it is crucial for learners to stay connected with their study centers and regional centers to keep themselves informed about important updates and announcements. To facilitate this, our regional center actively share all university related information through various social media platforms including Facebook, Telegram, YouTube and Twitter. So I request all you learners to regularly check this platform to stay updated and plan your academic journey accordingly.
As you can see, this is the IGNOU University Facebook page where you will receive time to time update related to the university, different type of activities and announcements. And there is an RC3 Facebook page where you will find information related to your academics activities. And IGNOU University also has a Twitter page, and the RC3 also has a Twitter page as well, where you will get the latest announcement and information about the RC activities and the IGNOU University related activities. For recorded lectures and live interaction, you can watch the Gyan Darshan TV channel and Gyan Vani FM radio or Gyan Dhara web radio, where you can learn about student support services and get information related to your program. You can also discuss your queries with the experts. And IGNOU has also a YouTube channel where you will find recorded classes and you can clear your doubts, or you can also visit the university website and click on the link of eGyan course IGNOU YouTube channel, and you can also visit on the homepage of the RC3 website. So you can find the YouTube channel link here. Now I discuss about how to download all the question papers. As you can see, this is the IGNOU University homepage, and here is the icon of download. When you click on this icon, which will open on a page where you will find all previous year question papers and program according session wise, June and December's, and year wise. You can access all the term and examination question paper. And in last, I just share one thing with you. Before planning your academic journey, please adhere the time mentioned by the university and according to guidelines, so you plan your academic journey smoothly. Or if you have faced any type of problem during this academic journey, please contact us without any hesitation. Now I end my presentation here. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you, Dr. Neeraj, for presenting the IGNOU-related important information for the learners of July 2024 session. Now, I would like to invite our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, to please let us give us information about other aspects of the university and the programs. Thank you, Dr. Faisal and Dr. Neeraj. Although you have covered all the important aspects of our system, but still I would also like to share something important with our learners. Dear learners, from the presentations of my colleagues, Dr. Faisal and Dr. Neeraj,
You have already come to know our system. You have seen the slides in which they have shown you our major web links, web pages, whether it is regarding your admission status or downloading assignments or downloading old question paper links, or you have seen the web page of our RC Delhi 3 also, where you can find your academic counseling schedules and our social media handles. So almost all the important activities which we are conducting at our regional center, now you have come to know about those. We are organizing academic counseling sessions for you. We are helping you in your practicals, in your projects, in your assignment evaluation, and in the conduct of your examinations and other things. My colleagues, Dr. Faisal and Dr. Neeraj, have already gave a very detailed presentation regarding various activities of our regional center and our university. Still, one more important aspect is there, which I think that you all should be aware of. And I would like to share my screen to provide you some information about that. Kindly let me know when you start seeing my screen. Is it visible, Daksab? Not visible, sir. Is not visible. Is it visible now? Yes, sir. Now it is visible. Okay. Thank you, Dr. Faisal. Thank you. Dear learners, as I just told you in the beginning of our today's induction meeting, in this July 24 session, in certificate level programs and in semester based programs, we have got approximately 5,000 learners in different 94 programs. And the biggest group amongst all the programs is BCA New, 1,398. And then we have lot many learners in MCA also, MBA also, and MCOM 7,026. So this is a bifurcation of the program wise number of learners we have got in this session, July 24, in 6 months certificate level programs or 6 months जैसे semester based programs, as just my colleagues briefed you, shared with you all. And I would also like to inform you about the important documents which you all must be having with you. One is our university's common prospectus. Although you have all got admission through our website, IGNOU website, www.ignou.ac.in, and in that web page on the portal, you must have seen a link of IGNOU Common Prospectus. But many students do not download its copy either in their mobile or in their computer laptop. So my first recommendation and my request to all of you is that please, if you have not yet downloaded your Common Prospectus, kindly download it today itself. It contains lots of many important information which will help you at each and every step of your academic journey in our university. Second most important document is your respective program guide. As I just shown you that you are a student of any of these 94 programs, and at our university website, you will find the program guide of your respective programs. So you must immediately download your program guide also today, and please read it thoroughly. It will give you a glimpse, it will give you complete information about your different courses. As Dr. Faisal also told in his presentation that usually in certificate level programs, project component is not there. So from where you will get all such type of information, what are your courses, whether there are only theory courses or if you have any project component or if you have any practical component, from where you will get all these types of informations. It is our program guide.
So please download it and please go through it. If you will be aware about your program guide and your program and your different courses, then you will be able to complete your program successfully within the minimum duration of your program. I will elaborate about this minimum duration and maximum duration within a few minutes. So please, my humble request to all of you is that kindly download your program guide. It is very, very, very important document for all of you. And the third document is Diksha Rambh. Diksha Rambh, it is student induction program. You can see the image of this document, from where you can download this IGNOU Common Prospectus or Diksha Rambh. I have given you the links at this slide. IGNOU Common Prospectus, you all know, it is on that web page from where you got your admission portal. So you can revisit that web page from where you got yourself admitted, and there it is a link for downloading Common Prospectus. Second, Diksha Rambh, it is also available at our university website. You can take a screenshot of this particular slide and then you can use this link to download Diksha Rambh. And in this student induction handbook, again, as we have shared lots of many important informations with you all today in this our induction meeting. So in this document, Diksha Rambh also, you will find very, very crucial information which will help you a lot in each and every step of your academic journey in our university. When you will download the Common Prospectus, in its chapter 2, summary list of programs, please see the page number 27 to 55. On these pages, you will find lots of many important information about our different programs. As you can see in this slide, the program name is there, the program code is there, which school is offering that program, it is mentioned there, and then eligibility criteria, then medium, this program is offered in which medium, and then in this red box you can see two headings, minimum duration and maximum duration. Then fee structure is there, and then at the end of this table in the last column you can see the session has been mentioned in which these different programs are offered by our university for our learners throughout India and abroad. So in this slide you can see minimum duration and maximum duration. These are very important information from a learner's point of view. As we have just shared with you that either you are a student of certificate level program who are attending this program today, or you are a learner of our any semester based programs. So for certificate level programs, say for example, our university has two different type of durations. As you can see, I have prepared a slide showing general roadmap of certificate level programs. And if this concept is clear to all of you, then our semester based program learners can also develop such type of a roadmap for themselves. So I have taken this example for our certificate level program students. So dear students who are a student of our any certificate level program, when you will see your Common Prospectus, then against your program code, you will find in most of the cases a general formula is that most of our certificate level programs are of minimum 6 months and maximum 2 years. So what does it mean? It simply means that if a student wants to clear and pass his or her certificate level program, then you can clear it in 6 months duration itself. But if because of any particular reason, say for example health reasons, or if any employed learners, if you do not get leave from your office and if you miss any examination, then you need not to worry. Under such type of situations, you get a period of maximum 2 years
to complete your this certificate level program within that same admission fees which you paid at the time of getting yourself enrolled in our university. So this is a very flexible system that in the same fees you can pass your certificate level program within a maximum period of 2 years. So this is very much clear in this slide. So please pay attention to this slide. I am just explaining it to you all. This is general roadmap for our certificate level program learners. And if it is clear to our semester based program learners also, then you can also develop your own respective roadmap according to your program. Minimum duration 6 months, maximum duration 2 years. And this roadmap I have designed for our learners who have got enrolled in July 24. So this is your first 6 months which have started from July 24. And now you have to do one major activity, that you have to submit your assignments. And for your batch, now this particular date, I have not mentioned it because earlier it was 30th of September, but because your session has started a little bit late, so our university has extended the last date of submission of your assignment, and now it is 31st of October. And I will show you at our website where you can find such type of important notifications also. So for you, now the assignment submission last date is 31st of October, and presently the exam form submission portal is also open, and the present last date for submission of your examination form, it is, as my colleague Dr. Faisal, he presented it to you in one of the slides, that from our university website you can fill your online examination form. Presently this date is 15th of October, and you have to appear in the examinations in your December term and examinations. So if you submit your assignments, if you fill your examination form, and if you appear in your December 2024 term and exams, then you can complete your certificate and you can get your certificate. So this is your plan, and if you follow these steps, then you can pass your this certificate level program within the minimum duration of 6 months, and then next year you can get yourself enrolled in any other program of your choice. So this is a general roadmap. Say for example, now let us take second example. Say for example, in your program, in your particular program, there are 4 courses, but you could appear in the term and examination of only 1 course, and because of various reasons, say for example, you did not get leave from your office, or for any other responsibility, or for some another, say for example, health issues, you could not appear in 3 courses and you just appeared in 1 course. So what about those 3 remaining courses? No issue, no problem. This is your another 6 months chance which you will get in the first 6 months of 2025. If you have already submitted the assignments of all of your 4 courses, you need not to resubmit the assignments again. Please note it, assignment submission is one-time activity. If you had submitted the assignments of all of your 4 courses, you will skip this course, this step. So you need not to resubmit the assignment of those 3 courses again. So you will have to take this step. You will have to fill online examination form for those remaining 3 courses once again, and the last date will be 31st of March. Say for example, here you had submitted the assignment of only 1 course and you filled the examination form only for that 1 course, and you appeared in the term and examination in December 2024 in that 1 course only. So now you will have to submit the remaining assignments of your remaining 3 courses before 31st of March. And for those 3 courses, you will be filling up your examination form, and then
you will be appearing in term end examinations in June 2025 term end exams. So here you can understand that our university conducts term end examinations twice a year. First, we conduct examinations in the June month, and then we conduct term end examinations in December month. So if you skip any of the examination of any of your courses, no issues, no worries, you can appear in the remaining courses in June 2025. Now let us take third example. Out of remaining 3 courses, again you could appear only one course. So one course you appeared here, and in one course you appeared here. Now remaining 2 courses, no need to worry again. You can appear in this slot. This will be your third term, and it will be ending with your term end examinations in December 2025. Again here, if you had already submitted the assignments of all of your 4 courses, now you need not to submit the assignment of those courses again, because you have already submitted your assignments either here or here. So if you have submitted assignments of all of your courses, you will skip this step, but you will have to fill the examination form online, and the last date will be usual. This is general schedule. Last date will be 30th of September 2025, and you will be appearing in the examination of your remaining 2 courses in this December 2025. Now again, let us say one more example, that here also out of 2 courses, you could appear in the examination of only 1 course, and still 1 course left pending. So don't worry, you have 4th and last chance here in 2026. Again, because you have already submitted the assignment of all of your 4 courses, no need to resubmit the assignment once again, because you have already submitted your assignments. So this step will be skipped. You need not to take this step, but you will have to fill your examination form, and the last date, general last date for that will be 31st of March 2026. And then for those remaining courses, you will have to appear in your term end examination in June 2026. Please note that for this 2 years maximum duration program, which began on July 2024, your admission validity will end in June 2026. So if you will clear all of your courses, if there are 4 courses or if there are 5 courses in your particular program, or if there were only 3 courses, so you will have to clear all of your courses before June 2026 or by June 2026. If even a single course will remain uncleared, if you will not complete all of your courses successfully, then your admission validity will expire, and whole your this hard work will go waste. So please note it very carefully that our first recommendation is that you must pass all of your courses within these 6 months only, within minimum duration of your program. Please complete your program within this duration only. But still, because our system is very flexible, if you are not able to clear all of your courses by December 2024 term end examinations, please don't worry. You will get 3 more chance. 1 chance in June 2025 term end exams, then 1 more chance December 2025, but last chance in June 2026 term end examinations. So this is a general roadmap for our learners who have got themselves enrolled in our certificate level programs. On the similar lines, our semester based program learners, they can also mention, you can also develop your own roadmap. Please mention the minimum duration of your program here and your maximum duration. Say for example,
BCA program, say for example bachelor's BCA program, if your program is of minimum 3 years duration, 3 years, then your maximum duration will be 6 years. And you can see it in the common prospectus. Bachelor level program learners, minimum duration generally, if it is 4-year undergraduate program, then minimum duration will be 4 years and maximum duration will be 8 years. So these types of informations are available in our common prospectus. You can find it there. So I hope that this information is very much relevant or very much crucial to all of you. One more important thing I would like to share with you, as my colleague also told you about that. Are you able to see my screen? Is it Yes, sir. visible? Yes, visible. Okay, thank you, Dr. Saab. So, dear students, as my colleague also showed it to you in his presentation, this is the live demonstration of our university website, and this is the registration link. And at the time of admission, you visited this link, fresh admission. So I am not talking about this fresh admission link right now. For the certificate level programs, this is our term and examination link. When you will click that term and examination link, you will come on this web page, and here you will see that the last date for term and examination form fill up is 15th of October, 6 p.m. without late fees. So please take care of all these things, that if you want to appear in your term and examinations in December 2024 term and examinations, so please fill up your examination form immediately. Please do not delay it. Another important information which I would like to share with our semester-based learners who have got themselves enrolled in semester-based programs, very soon you will have to fill your re-registration form also for your next session. Presently, this is for our July 2024 session, but very soon this page will be updated and our university will start this portal for January 2025 session. So our learners, say for example BCA learners, MCA learners, presently you are a learner of our first semester, but very soon when this re-registration portal will be open, now as soon as this portal will be open for January 25 session, you will see a change here. Now presently it is written July 24, but then you will find it here January 2025. At that time, all of you who are our students of semester based programs, say for example BCA MCA, I am taking example of BCA MCA, because you are a learner of first semester at present. At the time of your admission, you paid the fees of only first semester, but as soon as the re-registration portal is open, you will have to get yourself re-registered for your second semester, and for that you will be visiting this page. Please read all these important instructions, then please click it here, and then please proceed for your re-registration. Then you will come at this student portal page, and then you will have to you have to sign in at this page. So this is for our semester based programs. It will not apply on our certificate level programs learners. I am repeating it once again. It is for the learners who are our students of semester based programs like BCA, MCA, different MBA programs, who have got themselves registered by paying the fees of first semester only. So very soon this portal will be activated for January 25 re-registrations. So please take care of it. So these are major important informations which myself and my team wanted to share with you all. And if you have any queries, then we will take some questions also. Dr. Faisal, you can now please proceed further. Thank you so much. थैंक यू सर, आपने बहुत ही डिटेल्ड वे में जो है
स्लाइड की मदद से और वेबसाइट की लाइव एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे लर्नर्स के साथ शेयर किया, और इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे कि आपने जो है हमारे लर्नर्स को गाइड किया। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लर्नर्स ने इसको, आपकी बातों को गौर से सुना, तो उनको, उनके जहन में बहुत ज़्यादा सवाल अब बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। इट इज ए टीम वर्क, जी, और आपने भी बहुत रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है लर्नर्स के साथ, और डॉक्टर नीरज ने भी। सो इट इज ए टीम वर्क डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फिर भी मैं फेसबुक लाइव देख रहा हूँ, और अभी हमारे साथ करीब 228 228 लर्नर्स जो हैं वो लाइव इसको देख रहे हैं फेसबुक। जी डॉक्टर साहब, ये संख्या मैंने थोड़ी देर पहले चेक की थी, तो 342 तक मैंने देखा था। 342 तक लर्नर्स हमारे साथ फेसबुक लाइव पर उस समय पर जुड़े हुए थे। जी जी। Yes. अभी धीरे धीरे कुछ कम हो गए, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ कमेंट्स में, उसमें ज़्यादातर हमारे लर्नर्स को आपस में, जो पीयर ग्रुप है इनका, उसमें एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई असाइनमेंट बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इस बारे में भी सारा आप ज़रा स्टूडेंट्स को अवगत कराएं। जी, ये इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, और इस हमारे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे लोग जो है इसमें इंटर कर गए हैं, इसके बारे में भी कुछ बोलें सर आप। जी डियर लर्नर्स, मैं आप सभी को इस बारे में अवेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अगर इस तरीके से कोई सोल्ड असाइनमेंट्स बेच रहे हैं या हैंड रिटन असाइनमेंट्स बेच रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके झांसे में ना आए। प्लीज़ आप उनकी सोल्ड असाइनमेंट्स को परचेज ना करें। अगर कोई बनी बनाई असाइनमेंट्स बेच रहे हैं, तो अगर आप उनसे बनी बनाई असाइनमेंट्स खरीद कर अगर आप जमा करवाते हैं, तो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स, इवेल्युएटर्स जब आपकी असाइनमेंट को चेक करते हैं, तो वो उसी समय पर इस चीज़ को पकड़ लेंगे और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उससे क्या होगा? उससे आपका पैसा तो खैर बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा आपका नुकसान ये होगा कि आपका 6 महीने का आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपके वो असाइनमेंट के नंबर नहीं लगेंगे, और आपको फिर अगले सेमेस्टर में अपना वही वाला जो आपको मेहनत जो है वो दोबारा से आपको सारा का सारा मेहनत करनी पड़ेगी। और उस समय पर जो भी, जैसे डॉक्टर फैसल ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से करंट लेटेस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट्स लिखनी है। तो अगर आप इस छमाही में अगर इस तरीके की कोई गलती कर बैठते हैं, और अगर आपने किसी से परचेज करके जमा करवा दी, तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, और आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी, और आपका 6 महीने का बहुत सबसे बड़ा जो नुकसान है वो 6 महीने का होगा। और अब आप अगर ये सोच रहे थे कि दिसंबर में आप अपना ये सेमेस्टर या अपना आप ये सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम पूरा कर पाएंगे, वो आपका जो टारगेट है वो डिफीट हो जाएगा, और आपका 0 मार्क्स आने के कारण आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा, और आपको फिर अगले 31 मार्च 2025 से पहले दोबारा से फिर से आपको अपनी असाइनमेंट लिखकर जमा करवानी पड़ेगी। और उस समय पर जब आप असाइनमेंट में पास होंगे, तब आपका वो वाला कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट माना जाएगा। तो प्लीज इस तरीके की किसी भी जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम इसको डिस्करेज करते हैं, हम इसको मना करते हैं। और आप, क्योंकि आपने हमारी यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए एडमिशन लिया है, और इसलिए हम आपको लर्नर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आमतौर पर शब्द हम यूज कम करते हैं, यूज नहीं करते हैं। हम आपको स्टूडेंट से ज्यादा हम लर्नर आपको ज्यादा हम एड्रेस करते हैं। तो क्योंकि आपने लर्निंग के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, सो प्लीज डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ एनी सच पर्सन जो गलत तरीके से आपको असाइनमेंट बेचकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सीखने के लिए एडमिशन लिया है, आप असाइनमेंट्स को खुद पढ़िए, लिखिए, सीखिए, और बहुत अच्छा अपना कैरियर बनाने की कोशिश करिए। जी डॉक्टर साहब।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। और यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग असाइनमेंट परचेज करके या कहीं से कॉपी करके उसको जमा करते हैं, उनको 0 मार्क्स आते हैं, और 0 मार्क्स आने के बाद वो ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या है, ये हमारे लर्नर्स परेशान होते हैं कि, और ये सोचते हैं कि उनके असाइनमेंट्स इवेलुएट नहीं हो पाए, तो फिर वो कभी रीजनल सेंटर जाते हैं, कभी स्टडी सेंटर जाते हैं, हालांकि उनके असाइनमेंट्स इवेलुएट होकर के उनको 0 मार्क्स मिल जाते हैं, और उनको पता नहीं चल पाता कि उनको 0 मार्क्स मिले हैं, ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये भी स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा, और हमारे रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर का भी टाइम वेस्ट होगा, और फिर उनको आगे बहुत परेशानी होगी डिग्री हासिल करने में। दूसरी बात ये है कि सर असाइनमेंट्स की अगर तैयारी करते हैं हमारे लर्नर्स, तो एग्जामिनेशन की भी तैयारी उसी से हो जाती है। अलग से उनको जी एग्जामिनेशन में बिल्कुल फिर पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ती है, या बिल्कुल। या डेली बेसिस पे अगर 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं तो उसी से उनका काम चल जाता है। जी तो इसलिए भी जो है स्टूडेंट को असाइनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मैं जो कमेंट्स में सर देख पा रहा हूँ, उसमें एक स्टूडेंट ने ये लिखा कि सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? जी जी, सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन का मतलब यही है कि जैसे अब बीसीए के हमारे या एमसीए के हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है जुलाई 24 से शुरू हो चुका है, और सेमेस्टर का मतलब छमाही। तो आपका जो 6 महीने का पीरियड है जुलाई वाले सेशन के स्टूडेंट्स का, आपका 6 महीने का समय जो है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो आपको अब इस दिसंबर टर्म एंड एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको अपना इसी समय आपको अपना ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, जो अभी मैंने आपको लिंक दिखाया, वहां पर आपको अपना एग्जाम फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए। तो सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशंस का मतलब यही होता है कि जो हर 6ठे महीने पर हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती है, उन परीक्षाओं में आपको अपीयर होना है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट प्लीज। अभी कुछ देर पहले मैंने एक कमेंट देखा था जो ऊपर खिसक गया। उसमें हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमारे असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस अभी अपलोड ही नहीं हुए हैं वेबसाइट पे, तो इस केस में हम क्या करें? डियर स्टूडेंट्स, मैं इस केस में आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। या तो आप अपना प्रोग्राम कोड, अपना एनरोलमेंट लिखते हुए, आप अपना कंप्लीट डिटेल लिखते हुए, या तो आप हमारे पास ईमेल डाल दें। हमारा ईमेल एड्रेस rcdelhi3@ignou.ac.in है, और इसी ईमेल एड्रेस से जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था, मैंने आपको बहुत डिटेल्ड ईमेल डाला था। तो या तो आप हमें एक ईमेल डाल दें, या फिर आप जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया है उसमें प्रोग्राम इंफॉर्मेशन का जो लिंक होता है, डॉक्टर साहब मैं एक यहाँ पर एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं स्टूडेंट्स को जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे को बताएं जब स्क्रीन दिखाई दे रही हो। इज इट विजिबल? जी दिख रही है, दिख रही है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे आपने देखा था थोड़ी देर पहले रजिस्टर ऑनलाइन, और ये हमारा फ्रेश एडमिशन पोर्टल था, और इसी पोर्टल के माध्यम से आपने जो है हमारी यूनिवर्सिटी में अपने मनचाहे प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। तो इस पे आपने स्टार्टिंग में जब आपने एडमिशन के टाइम पर भी इस वेब पेज को विजिट किया होगा, तो यहाँ ऊपर आपने देखा होगा प्रोग्राम इंफॉर्मेशन। अब प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप में से हमारा कोई स्टूडेंट जो है कि कोई भी एक हम यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हम बीसीए का हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीसीए न्यू। अब जब आप बीसीए न्यू का आप जब लिंक को क्लिक करते हैं, तो जब आप इसी पेज पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी यहाँ पर शायद अभी इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का यहाँ पर डिटेल नहीं डाले हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम का हम देख लेते हैं। जैसे एक हम देख लेते हैं, ये बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स का हम देख लेते हैं। जब आप उस प्रोग्राम के टाइटल को जब आप क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर
प्रोग्राम की डिटेल्स के नीचे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का आपको यहाँ पर एक हेडिंग मिलता है और फिर उसके आगे उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन हैं उनका आपको यहाँ पर नाम मिल जाता है और फिर यहाँ पर आपको उनका ईमेल एड्रेस मिल जाता है। तो अगर आपको आपके किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का अगर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को कांटेक्ट करके उनको एक ईमेल से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि सर या मैडम एज द केस इज, जो भी केस है, तो जैसे मैडम हैं तो आप उनको रेस्पेक्टेड मैडम, और आप उसमें लिख सकते हैं कि हम आपके इस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और जब हमने वेबसाइट को विजिट किया, असाइनमेंट को डाउनलोड करने की कोशिश की, तो हमें हमारे पर्टिकुलर कोर्सेज की, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका यही एक कोर्स है से फॉर एग्जांपल, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं हो पाया है, प्लीज इस कोर्स के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को एट द अर्लीस्ट वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाए। तो हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जब उनके पास आपका ईमेल जाएगा तो वो फिर उस पर्टिकुलर कोर्स का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड करवा देंगे। तो इस तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू सर। बहुत सारे हमारे लर्नर्स ये पूछ रहे हैं जैसे MBA OL के या MCA के कि हमारी क्लासेस कब होंगी, इसका कुछ पता नहीं है। जी मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि क्योंकि अभी जस्ट बहुत रिसेंटली ही आपका फ्रेश एडमिशन जुलाई 24 का खत्म हुआ है और जस्ट अभी डाटा फाइनल आप लोगों का जस्ट रिसेंटली हुआ है और हमारी तरफ से आपके जो कंसर्न स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी को आप लोगों का जो डाटा है, एडमिशन डाटा है, वो दे दिया गया है। अब बहुत जल्दी ही हमारे जो स्टडी सेंटर्स हैं वो आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल बनाकर आपके सेशंस को शुरू करेंगे। और काउंसलिंग सेशंस कैसे आप लोगों को पता चलेगा, उसके लिए डॉक्टर नीरज ने अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बताया है कि हमारे काउंसलिंग शेड्यूल्स कहाँ पर अपलोड होते हैं। तो आप हमारे उस वेब पेज को टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए और आप अपने प्रोग्राम कोड से जो ऑनलाइन, हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 38039 की तरफ से मोटे तौर पर ज्यादातर जो हमारे ऑनलाइन के जो हमारे लर्नर्स हैं उनको हम ही लोग यहाँ से RC दिल्ली 3 की तरफ से ही आपको डायरेक्ट सपोर्ट सर्विसेज देंगे और हमारा जो RC LSC कोड है वो 38039 है। तो आपको जो ऑनलाइन के हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारा 38039 पर हमारा काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा और बाकी जो दूसरे रेस्पेक्टिव प्रोग्राम के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आप अपना चेक करिएगा आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है और उस स्टडी सेंटर कोड के अगेंस्ट जब आपको काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड हो जाएगा तो आपको उस वेब पेज पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो उसको आप जो मैडम ने आपको दिखाया, मैडम नीरज ने, उस पेज को आप टाइम टू टाइम जरूर विजिट करिएगा, वहां से आपको आपका काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज। सीमा शर्मा लिख रही हैं कि सर डू वी नीड टू क्लियर थ्योरी एंड असाइनमेंट सेपरेटली टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन BCA? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम में जैसे सभी थ्योरी कोर्सेज में 2 कंपल्सरी कंपोनेंट होते हैं। जो थ्योरी कोर्स हैं उसका थ्योरी तो आपको तैयार करना ही करना होता है और आपको सभी थ्योरी कोर्सेज का एक एक असाइनमेंट भी तैयार करना होता है और इन दोनों में पास अलग अलग होना मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। लेकिन अब यहाँ पर आगे क्या होता है, उस पर्टिकुलर कोर्स के जैसे 2 हिस्से हो गए, 2 भाग हो गए, थ्योरी और असाइनमेंट। अब जो हमारा असाइनमेंट होता है उसको 30% वेटेज मिलता है और जो थ्योरी एग्जाम, जैसे जून टर्म एंड एग्जाम की हमने बात की थी, दिसंबर टर्म एंड एग्जाम की हमने बात की थी, तो जो टर्म एंड एग्जाम में थ्योरी कोर्सेज में आप परीक्षाओं में अपीयर होके पास होते हैं तो उनका 70% वेटेज आपको मिल जाता है। ये एक मोटी स्कीम है हमारे यूनिवर्सिटी के लगभग सभी के सभी प्रोग्राम्स में 70 और 30 का रेशो रहता है। आपके थ्योरी का 70% वेटेज आपको मिलता है और आपके असाइनमेंट का 30% वेटेज आपको मिलता है और ये 70 और 30 दोनों मिलकर 100% हो जाता है। तो दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। जी डॉक्टर साहब।
प्रियंका आर्या लिख रही हैं सर, व्हाट अबाउट दी लैब प्रैक्टिकल क्लासेस? यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रोग्राम की डिटेल्स को बहुत बारीकी से समझ लिया है और अपने कोर्सेज को भी उन्होंने बहुत बारीकी से समझ लिया है कि उनके कोर्सेज की नेचर क्या है, कौन से थ्योरी कोर्स हैं और कौन से लैब कोर्स हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस क्वेरी फ्रॉम वन ऑफ आवर लर्नर्स। सो डियर लर्नर्स, जैसे आप लोगों को पता चल गया कि आपका जो पर्टिकुलर इस समय पर जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसमें थ्योरी कोर्स कौन कौन से हैं, लैब कोर्स कौन कौन से हैं, तो बहुत जल्दी हमारा जो स्टडी सेंटर हैं उनकी तरफ से जब आपके प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल बना दिया जाएगा तो वो हमारे वेब पेज पर, जो डॉक्टर नीरज ने आपको वेबसाइट दिखाई थी, काउंसलिंग शेड्यूल्स वाला जो हमारा वेब पेज था, वहां पर आपको आपका प्रैक्टिकल्स का भी शेड्यूल मिल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने हैं और ध्यान रखिएगा, आपको पहले जैसे अभी बताया गया था, थ्योरी सेशंस में अटेंडेंस हालांकि कंपलसरी नहीं होती, फिर भी हम रिकमेंड करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अटेंडेंस थ्योरी में चाहे मैंडेटरी नहीं है, बट क्योंकि आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए हम ये थ्योरी सेशंस लगाते हैं, तो प्लीज थ्योरी जरूर अटेंड करें। उससे आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी और आपको अपने बाकी पीयर ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा और आप अपने ग्रुप्स बनाकर कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, एक दूसरे के टच में रह सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किसकी स्टडीज में क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो थ्योरी कोर्सेज में अटेंडेंस चाहे कंपलसरी नहीं है, पर आपको जरूर अटेंड करने चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स में अटेंडेंस कंपलसरी होती है, उनको आप स्किप नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते। अगर आपने प्रैक्टिकल्स पूरा अटेंड नहीं किए एज पर द रिक्वायरमेंट, और किस प्रैक्टिकल में कितने % अटेंडेंस कंपलसरी है, ये आपको आपकी प्रोग्राम गाइड से पता चलेगा। तो जितना मिनिमम % ऑफ अटेंडेंस इन द प्रैक्टिकल कंपोनेंट जरूरी है, उतना तो आपको अटेंड करना ही करना है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। मेरे ख्याल से सर एक आखिरी सवाल पढ़ देता हूँ। जी, अजय आर्या ये पूछ रहे हैं कि सर कैन वी चेंज आवर पेपर मोड? अब पेपर मोड से इनका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से ये डॉक्टर साहब म्यूट हो गया आपका, प्लीज अनम्यूट। ये पेपर मोड से ये क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ओडीएल से ऑनलाइन या ऑनलाइन से ओडीएल। नहीं डॉक्टर साहब, पेपर मोड से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पेपर मोड से शायद इनका मतलब होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो 2 टाइप से अलग अलग एग्जामिनेशन मोड बच्चों को ऑफर करती हैं। या तो पेपर एंड पेन मोड है, जिसमें स्टूडेंट्स को स्टडी सेंटर पर जाकर उनको आंसर शीट मिलती है और उनको पेन से उस आंसर शीट के ऊपर लिखकर जमा करवाना होता है। इसको हम पेपर एंड पेन मोड कहते हैं। और दूसरा है जो रिमोट प्रोक्टर्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो शायद ये स्टूडेंट जो है उस बारे में प्रश्न पूछना चाह रहे होंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि एक बार इन्होंने जो ऑप्शन इन्होंने चूज कर लिया है, एग्जाम फॉर्म भरते वक्त इन्होंने जो ऑप्शन चूज कर लिया है, वो शायद अब बदलने के लिए अब सुविधा उपलब्ध नहीं है। एग्जाम फॉर्म एक बार जब सबमिट हो गया तो उसमें एडिटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी मैं इनको कहूंगा कि अगर इनको फिर भी कोई इशू है तो ये हमारी स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की वेबसाइट को विजिट कर लें और वहां पर रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, रजिस्ट्रार SED@ignou.ac.in का एक ईमेल एड्रेस हमारा है। उस पर ये एक ईमेल डालकर क्वेरी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एक बार जब फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें एडिटिंग की या चेंज करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, इसी से रिलेवेंट मैं ये सर पूछना चाह रहा था कि बहुत से लर्नर्स ये कहते हैं कि हमारा ओडीएल से ऑनलाइन कर दिया जाए या ऑनलाइन से ओडीएल कर दिया जाए, तो इस बारे में यूनिवर्सिटी क्या कहती है? जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ समय पहले तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी और एक बार जो स्टूडेंट्स ने जिस मोड में, अगर ओडीएल में ले लिया है तो ओडीएल ही, और अगर ऑनलाइन ले लिया है तो ऑनलाइन ही।
उसमें इंटरचेंजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके की कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारा जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन है, रजिस्ट्रार srd@ignou.ac.in पर वो एक ईमेल डाल सकते हैं, या फिर जो हमारा CSRC जो हमारा सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेल है, csrc@ignou.ac.in पर एक ईमेल डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मोड्स में कुछ थोड़ा सा फीस वगैरह का अंतर है, तो इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि शायद ये फैसिलिटी अभी इन लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को शायद अवेलेबल नहीं हो पाएगी। बट फिर भी करंट अपडेट के लिए ये हमारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में जो हमारे रजिस्ट्रार हैं उनके पास एक ईमेल डालकर ये क्वेरी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। अभी कुछ टाइम पहले तक SRD से ये मेल आया था कि ये फैसिलिटी नहीं है, तो जो जिन लोगों ने ODL में ले लिया है वो ODL में परसू करेंगे, और जिन लोगों ने ऑनलाइन में लिया है वो ऑनलाइन में परसू करेंगे। तो मैं इसी के साथ सर मैं अब जो कमेंट्स हैं फेसबुक लाइव पे, वो जो जनरल क्वेश्चंस थे मैंने उनको पढ़े, और आपने बहुत ही डिटेल्ड वे में इसका जवाब दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अभी एक जो क्वेरी आई थी, मैं उसी से ही हिंट लेते हुए मैं एक बार फिर से, हालांकि ये चीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक एडवाइजरी के तौर पर हम एक बार फिर से, मैं और हमारी पूरी की पूरी टीम, मेरा पूरा का पूरा हमारा जो रीजन सेंटर दिल्ली 3 है, हम हमारे सभी डियर लर्नर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज मार्केट में जो इस तरीके के जो लोग हैं जो सोल्ड असाइनमेंट्स बेच रहे हैं या प्रोजेक्ट बेच रहे हैं या किसी दूसरे तरीके का आपको लालच दे रहे हैं, प्लीज आप उनके झांसे में ना आए। आप प्लीज ऐसे स्कैमर्स से बचें, ऐसे स्कैंडल करने वालों से बचें, और प्लीज आप इस तरीके से उनके द्वारा जो गलत तरीके से आपको सोल्ड असाइनमेंट या कोई बने बनाए प्रोजेक्ट या बना बनाया सिनॉप्सिस, ऐसा कुछ भी उनकी तरफ से जो आप लोगों को बेचा जा रहा है, प्लीज आप उनसे ना खरीदें, उस चक्कर में ना पड़ें। आप लोगों को धन का भी नुकसान होगा, आपका समय का भी नुकसान होगा, और आप लोगों का पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आएगी। तो हम लोग अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को ये सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी पूरी टीम और मैं, कि प्लीज आप इस तरीके के बनी बनाए असाइनमेंट, सोल्ड असाइनमेंट, बने बनाए प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस, फील्ड वर्क रिपोर्ट्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्लीज आप ऐसे जालसाजों से बचें, उनके झांसे में ना आए, अपना पैसा व्यर्थ बर्बाद ना करें, और इससे आप लोगों को शैक्षणिक हानि भी होगी, आर्थिक हानि भी होगी, और आप लोगों को अपना प्रोग्राम पूरा करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। और हमारे यहाँ पर जब इस तरीके के केसेस को पकड़ लिया जाता है तो उनका, हमारे जो इवेल्युएटर्स हैं वो अनफेयर मीन्स केस बना देते हैं, UFM, जिसको शॉर्ट में UFM कहा जाता है, अनफेयर मीन्स केस। तो उससे आप लोगों की पढ़ाई में बहुत नुकसान आप लोगों को हो जाएगा। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आप सभी से ये एक विनम्र आग्रह करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ऐसे जालसाजों से बचें, और ऐसा कोई भी जो गलत ऑफर आपको दे रहे हैं उनसे आप दूर रहें, बच के रहें, उनके झांसे में ना आए। जी डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बातें इग्नू से रिलेटेड और जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड, और किस तरह से स्टूडेंट आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और किस तरह से वो अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आपने रहनुमाई की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर साहब, मैं जस्ट 1 मिनट और मैं लूंगा डॉक्टर साहब। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं एक और अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए मैं उनको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है डॉक्टर साहब? जी सर, विजिबल है। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि हमारी यूनिवर्सिटी की ही इसी वेबसाइट पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे।
जैसे अपने वक्तव्य के दौरान मैंने भी और मेरे अलग कुलीग्स ने भी एक चीज आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर की थी असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। और जैसे मैंने भी आप लोगों को कहा था कि असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, तो इस वेबसाइट को आप, हमारी जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको तो आप जानते ही हैं। हमारा लोगो है, हमारा नाम है, हमारा नैक का यहाँ पर लोगो है A++ का। और इसी वेबसाइट पर जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर अलर्ट्स का सेक्शन है और यहाँ पर आपको न्यूज एंड अनाउंसमेंट का भी एक सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट नई इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से टाइम टू टाइम जरूर देखनी है। कोशिश करें कि दिन में एक बार अगर पॉसिबल है तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। और इसके अलावा जो अलग अलग नोटिफिकेशंस अनाउंसमेंट्स हमारी होती हैं वो आपको यहाँ के साथ साथ यहाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की पहले लास्ट डेट थी 30 सितंबर। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आपके बैच का स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है थोड़ा आगे तक लंबा चल गया, थोड़ा लेट हुआ, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने लास्ट डेट आपकी असाइनमेंट जमा करने की वो बढ़ा दी है। तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं से मिलेगी। और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये जो नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट पर, हमारे इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाला हुआ है। और ये हमारा स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की तरफ से है, हमारा जो असाइनमेंट सेक्शन है उनका नोटिफिकेशन है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारा। और आप इसमें देख सकते हैं कि असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट अब बढ़ाकर यूनिवर्सिटी ने 31 अक्टूबर 2024 कर दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता था कि आप टाइम टू टाइम प्लीज आप हमारी वेबसाइट के वेब पेज को, होम पेज को जरूर विजिट करें, अलर्ट्स को यहाँ पर जरूर देखें, नया क्या हो रहा है, और न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स को आप जरूर देखें। हमारी यूनिवर्सिटी जो टाइम टू टाइम जो वैकेंसीज निकालती हैं उनकी भी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप में से हमारा कोई स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो टाइम टू टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज वगैरह भी निकलती हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का होम पेज है। प्लीज आप हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को एटलीस्ट डेली एक बार अगर संभव है तो प्लीज जरूर विजिट करें। दिस इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट। जी डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू सर। अब मैं आखिर में अपनी ARD कॉलीग डॉक्टर नीरज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। डॉक्टर नीरज। Thank you, sir. Now we are at the end of this meeting, and I'm sure it has been a great learning experience for all you learners. On the behalf of RC Delhi 3, I would like to thank our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji. He always motivates and guides us to organize such programs. And I have always seen that students remain the first priority for him. Thank you so much, sir, for your valuable guidance in shaping the academic journey of new learners. I also thank to Dr. M.R. Faisalji, ARD, for planning and coordinating everything so well. Sir, you have provided extremely valuable information through a highly comprehensive presentation in a short time period. Thank you so much, sir. I would also like to extend my gratitude to all the staff of RC and LSC, coordinators, assistant coordinators, academic counselors, for their valuable contributions in organizing this meeting. Last but not least, I would like to thank the participants for attending this program and discussing their queries with us. I hope this meeting will be useful for you, and all the best for future. Thank you. Thank you, Dr. Neeraj. And with this, I request our Senior Regional Director to please declare the meeting as ended. Thank you, Dr. Faisal, Dr. Neeraj, my colleagues at RC Delhi 3, and our colleagues at our different study centers, and most important, our dear learners. I thank you all from my side also and from the side of my team. Thank you so much.
And now I request Dr. Faisal to please close the session. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, sir. Now I wish all the best to our learners, and thank you all. Thank you for joining. Thank you. Thank you, Dr. Best wishes. Thank you so much.